آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور استور کے عوام کا میں دو باتیں کروں گا استور کے عوام کے لیے. آپ شہید بٹھو کو نہ بھولیں. آپ غیور عوام ہے. آپ کی وجہ سے شہید بٹھو نے آپ کو سبسڈی دیا ہے اور آپ نے انشاءاللہ اس دفعہ بلاول بٹھو زرداری کے خاطر جو گھر گھر پھر رہا ہے, اتنا دنیا ان کو مانتی ہے. ہم خود پریشان ہیں ان کی وجہ سے کہ یہ گھر گھر جا رہے ہیں, آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ اس دفعہ گلگت بلتستان سے میں تو یہ کہوں گا ان کے احترام میں آپ 20 سیٹیں دے دیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میرے بھائی قاہرہ صاحب, آپ کو اس نے اس زمانے میں پتا ہے, آپ کو صوبائی سسٹم انہوں نے پہلے دیا ہے. آصف علی زرداری نے آپ کو صوبائی سسٹم دے کر فارغ کیا ہے. ابھی کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو صوبہ دے دوں, وہ نہیں دے سکتا ہے میرے بھائی. اگر صوبہ پکا دے دے گا تو بلاول بٹھو زرداری آپ کو دے گا. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی کا جو نمائندہ بن کے آپ کے پاس آئے وہ استور کا ہی ہے. آپ اس کو کیسے ووٹ دے سکتے ہیں؟ وہ آپ ووٹ دے دے وہ پنجاب میں رہنے والا ہے, اسلام آباد میں رہنے والا ہے. ریلے جو آپ کے اس علاقے میں رہنے والا ہے, حمید آپ کا اس علاقے میں رہنے والا ہے. آپ استور کے عوام جانتے ہیں. اس دفعہ آپ کو ایک ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ گلگت بلتستان پورے کو. اگر بلاول بٹھو زرداری کو آپ خوش کرا کے یہاں سے بھیجیں گے تو آپ کے سارے مطالبات حل ہو گئے. خدا حافظ وسلام. ونس اگین میں جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو استور آمد پر دل کی عطا امید گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. معزز خواتین و حضرات, چونکہ ہماری یہ روایت کا حصہ ہے, اس طرح کے ایونٹس میں ہمارے معزز مہمانوں کو روایتی ٹوپیاں اور چوگے پہناتے ہیں, تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. میری گزارش ہوگی ڈاکٹر مظفر علی صاحب جو کہ نامزد امیدوار ہیں حلقہ 2 استور کے, وہ اور محمد علی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ دونوں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو روایتی چوگا اور ٹوپی پہنائیں. ان کے ساتھ معاونت کریں گے جناب عبدالحمید خان صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع استور کے. اب میری گزارش ہوگی جناب ایڈوکیٹ عتیق صاحب اور چیئرمین رمضان صاحب, آپ دونوں سے میری گزارش ہوگی آپ سٹیج پر چلے جائیں اور وہاں محترم جناب قمر زبان قاہرہ صاحب کو روایتی ٹوپی پہنائیں. اب میری گزارش ہوگی جناب محمد موسیٰ صاحب جو کہ ہمارے سینئر ورکر ہیں, ہمارے کارکن ہیں. شارٹ کرو, ہمارا میڈیا کے ساتھ ٹائم ہے 3:35. بس اب شارٹ کرو. نہیں یار, بخاری صاحب کو روایتی ٹوپی پہنائیں. بس ٹھیک ہے, ٹھیک. میں جلسہ گاہ کو میں کارکنوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ان نعروں کا جواب بھرپور انداز میں دیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے. محنت کشوں اور شہداء کا وارث آپ کے درمیان ہے. نعرے بلاول, نعرے بلاول, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم. میں ملتمس ہوں سید بادشاہ سید نیر حسین بخاری سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرے بھٹو,
بلاول चलो बैठो जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब राफे साहब, उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, PSF यूथ के अहदेदारान, हम चेयरमैन के और किसी को नहीं ख्वातीन व हज़रात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन साथियों, मुझे ये एजाज़ आज 26 साल बाद फिर मिल रहा है कि मैं अस्तौर में आपके पास हाजिर हो रहा हूँ। और नसीर साहब और हमीद साहब को पता है कि 1994 से हमने आगाज़ किया। अभी मूसा साहब ने भी बात की सूबे के हवाले से, तो मौजूदा हुक्मरान जिसे बनारसी ठग मैं समझता हूँ, ये बनारसी ठगों का टोला है और वो ऐसे ठगी करना चाहते हैं कि आपसे वोट ये अबूरी सूबे के नाम से आपसे ठगना चाहते हैं। उनको ये इल्म नहीं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर ममलिकत थे उन्होंने सूबा तो अबूरी दे दिया, असेंबली दे दी, चीफ मिनिस्टर दे दिया, गवर्नर दे दिया, ये कौन सा अबूरी सूबा दे रहा है? जैसे वादा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने 2018 के इलेक्शन के मंशूर में ये वादा किया इस खित्ते के अवाम से कि हम आपको आईनी हकूक देंगे, तो इमरान खान के पल्ले तो कख नहीं है। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, जब तक कौमी असेंबली और सेनेट आइन में तरमीम नहीं करते, तब तक आइनी हकूक नहीं मिल सकते। तो इमरान खान कौन सा ये अबूरी सूबा अनाउंस कर रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि ये एक ठगों का टोला है। और आप ये देखें कि ये एजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इस खत्ते की खिदमत, इस खत्ते के अवाम की खिदमत कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, सबसे पहले मोहतरमा ने 1994 में इस असेंबली को एक असेंबली की हैसियत दी और जब आपको डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव दिया, और वो भी महरूम आज पीर करम अली शाह पहले डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव गिलगित बल्तिस्तान के मोहतरमा शहीद के ज़माने में बने। आगाज़ तो मोहतरमा ने किया, सब्सिडी के हवाले से बात तो कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। मैं समझता हूँ कि ये रवायत आज भी जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कायम किए हुए हैं, जो कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम की, कि जब इसको शुमाली इलाका जात कहा जाता था तो हर कोने में, हर कस्बे में कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए। और उसी रवायत को आज दोहराते हुए जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज खपलू से लेके गिजर तक और गिजर से लेके हुंजा तक सब जगह इन्होंने सफ़र किया। ये दर्द समझते हैं इस खत्ते के अवाम का, ये तकलीफ़ें समझते हैं इस खत्ते के अवाम की। और जब भी कोई रिलीफ मिली, कोई आसाइश मिली, तो पीपल्स पार्टी के दौर में मिली। और हम समझते हैं कि जो वादा पीपल्स पार्टी की क़यादत करती है, जान चली जाए वादा ज़रूर निभाती है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की ये तारीख है। अब हम समझते हैं कि आप जिस अंदाज में हमारे असेंबली के मेंबरान मुंतखब करके भेजेंगे, और चेयरमैन ने कल भी एक तकरीर में कहा था कि जियाला वज़ीर आला होगा, आप देखेंगे कि मुंतखब आप करके भेजेंगे, वोटें आप दे के उसको असेंबली भेजेंगे, और वज़ीर आला और वज़ीर जो मुकर्रर करेंगे वो चेयरमैन बिलावल करेंगे, और इंशाल्लाह आपके मुंतखब नुमाइंदे ही वज़ीर आला भी होंगे और वज़ीर भी होंगे। साथियों, हम शुक्रगुजार हैं। मैं सबसे पहले
मुझे बेहद खुशी हुई आज कि इस हलके से बहुत सारे उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी, बहुत सारे उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी टिकट के लिए, लेकिन फैसला जब पार्टी की क़यादत ने राफेल साहब के हक में किया, आज बहुत सारे दरखास्त देने वाले इस स्टेज पे मौजूद है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यहाँ से कोई भाग ही नहीं, कोई दगा दे के छोड़ के नहीं गया, टिकट नहीं मिला, फिर भी आज हमारे उम्मीदवार के साथ नसीर साहब भी खड़े हैं, काशिपुंज भी खड़ा है और बाकी दोस्त भी हमारे खड़े हैं। ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन क़यादत के फैसले को मानता है और यही आपकी, मैं समझता हूँ ये आपको नवीद सुना रहे हैं कि आपकी कामयाबी का राज भी इसी में है कि इंशाल्लाह आपका उम्मीदवार जीतेगा। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारा अगला मुकर्रर अस्तोर हल्का 2 के नामजद उम्मीदवार, आप सबके हम सबके महबूब कायद, मेरे खुलूस में ठंडक है बादलों की तरह, मेरे खुलूस में ठंडक है बादलों की तरह, मैं दुश्मनों से भी मिलता हूँ दोस्तों की तरह। आप सबकी भरपूर तालियों में तालियां होनी चाहिए, भरपूर तालियों में डॉक्टर मुजफ्फर रेले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद सिपास अल्लाह पाक के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सलाम हो साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर और हम सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। मेरे महबूब कायद, फ़क्र एशिया के नवासे, मुफाहिमत के बादशाह के बेटे, शहीद जमहूरियत के दिलबंद और हम सब के महबूब नौजवान, हर दिल अजीज, वर्ल्ड के कायद, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो को और जनाब नियार हुसैन बुखारी, जनाब कायरा साहब और दिगर मेहमानान को मैं इस ठिठुरती सर्दी में, इस नाखुशगवार मौसम में गिलगित बल्तिस्तान, बिलखुसूस अस्तोर आमद पर अपनी जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अस्तोर की जानिब से, अस्तोर के गयूर अवाम की जानिब से चश्मे बरा हूं, खुश आमदेद कहता हूं। जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि इस वक्त, इस मौसम में, इस सर्दी के मौसम में मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जो भी साहिब सरवत होता है वो यहाँ नहीं टिकता, वो इस्लामाबाद में रहता है, वो कराची में रहता है, वो गर्म इलाकों की तरफ सफर करता है। मैंने ये देखा, तारीख ने ये देखा कि पीपल्स पार्टी इस ठिठुरती सर्दी में पीपल्स पार्टी के या तो कायद यहाँ है या उसका वर्कर रिले यहाँ रहता है। जनाब चेयरमैन, आपका टाइम बहुत कीमती है। मुझे एहसास है कि इस तकरीबन कम बेश महीने से आप इन इलाकों में हैं। ये आपकी हुर्रियत की जीती जागती दलील है और मैं इस वक्त गोल्ड स्मिथ के दामाद को ये पैगाम देना चाहता हूं, जो अपने आप को नौजवान समझता है, अगर वाकई तू मर्द है तो आ जाओ मेरे चेयरमैन के मुकाबले में, जिसने आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। तुम एक हफ्ता या इन सर्दियों में अपनी जिंदगी गुजार के देखो, हम तुम्हें उस वक्त मानते हैं, वरना तुम मानो कि मेरा चेयरमैन कल भी नौजवान था, आज भी नौजवान है और इंशाल्लाह तुम्हारे मुकाबले में हमेशा नौजवान रहेगा। जनाब चेयरमैन, आपके आने से न सिर्फ मेरी हौसला अफजाई हुई है और ये भी बताता चलूं, जनाब चेयरमैन, हमारे जलसे को नाकाम करने के लिए वक्त की कठपुतली हुकूमत ने इस वक्त इसी अस्तोर के अंदर
दो जलसों का इनकाद किया है, एक जलसा इस नाले में, दूसरा जलसा इस नाले में। लेकिन सलाम हो हमारी आवाम को कि अपने महबूब को, कायद को देखने के लिए उन जंजीरों को तोड़ते हुए हुकूमत को छोड़कर आपको सलाम करने के लिए आए हैं, आपका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। जी जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, तमाम जलसों में बरमला गिलगित बल्तिस्तान की आवाम यह एतराफ़ करती है कि भुट्टो शहीद, मोहतरमा शहीद और मर्द हो आसिफ जरदारी और आपके इस गिलगित बल्तिस्तान पर एहसानात हैं। हम बरमला इजहार करते हैं, लेकिन मैं आज इस स्टेज से यह भी बताना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपनी वफादारी हमेशा निभाई है, डिक्टेटरों के साथ मुकाबला किया है। आपकी क़यादत में डिक्टेटरों की जो जुल्म ज्यादती थी उसको बर्दाश्त करते हुए हमेशा पीपल्स पार्टी का परचम बुलंद रखा है, सीनों पे गोली खाई है, लेकिन भुट्टो फैमिली और पीपल्स पार्टी के साथ बेवफाई कभी नहीं की है। जनाब चेयरमैन, यकीनन इस वक्त मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, अवाम जिस तरीके से वालियाना अकीदत रखते हैं, जिस तरीके से पजीराई हमें मिलती है पीपल्स पार्टी के मंशूर और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म के तवसत से, गिलगित बल्तिस्तान में जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला, आपकी ये जो शबाना रोज मेहनत है, आपकी ये जद्दोजहद है, आपकी ये जवान मर्दी और बहादुरी है, इसके सिले में मुझे यकीन है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम आपका दामन थामते हुए गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम करके ही रहेंगे। जब जीबी की हुकूमत बने, हमारा वजीर आला होगा, तो अस्तौर के हवाले से 2-3 में मसाइल आपके गोश गुजार करना चाहता हूं जनाब चेयरमैन। नंबर 1, शॉर्टर टनल हमारी बका का मसला है, जो मर्द और आसिफ जरदारी ने इसको शुरू कराया था, लेकिन मौजूदा कठपुतली हुकूमत ने इसको पीएचडीबी से आउट किया है। ये न सिर्फ अस्तौर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की बका का जामिन शॉर्टर टनल है। इसलिए मैं आपसे इस जलसे के तवसत से दरखास्त करूंगा कि इस पर कठपुतली हुकूमत को इतना मजबूर कर दें कि वो शॉर्टर टनल को पीएचडीपी में बहाल करें। दूसरा गुजारिश है, फार फलांग एरिया होने के नाते से परिशिंग वैली को अगर हमारी हुकूमत बनती है तो ये वजीर आला की स्वाबदीद होगी, परिशिंग वैली को नियाबत का दर्जा दिलाया जाए। तीसरा, दोया दशकिन हरचों को नियाबत का दर्जा दिलाया जाए। सिंध में प्रोफेशनल कॉलेजेस में हमारे कोटे को इनहास करवाया जाए। ये चेयरमैन साहब आपसे हो सकता है। पांचवा, सिंध के अंदर हमारी सिंध हुकूमत ने कुछ जमीन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए खरीदने की इब्तिदा की थी। मेरी गुजारिश है, मजमे से मैं गुजारिश करूंगा, तवज्जो से सुने। मेरी गुजारिश होगी इस जलसे के तवसत से कि सिंध में अस्तौर हाउस का कयाम अमल में लाया जाए। आखिर में मैं अपने कायद और दिगर मेहमानान का और अपनी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं दावत देता हूं जनाब चेयरमैन को कि ये सामने गांव रिले का गांव है फीना के नाम से, और वहां पर मेरा गरीब खाना रिले हाउस के नाम से मंसूब है। मैं आज से अपने नाम को मिटाकर
बिलावल हाउस के नाम से आपके तवज्जुह से तख्ती चढ़ाना चाहता हूं। नारे 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 बिलावल, नारे 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 बीबी, नारे 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 रेले। आखिर में एक चंद जुमले मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। कायद आजम का पाकिस्तान 1971 में 2 लख्त हो गया था डिक्टेटरों की साजिश से, लेकिन मैं आज इस स्टेज के तवज्जुह से पूरी जिम्मेदारी के साथ, चैलेंज के साथ ये बात कहने पर हक बजानिब हूं। कायद आजम का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, भुट्टो का पाकिस्तान आज भी दुनिया के नक्शे में मौजूद है। और इस पाकिस्तान को संभालने के लिए, इस पाकिस्तान को चलाने के लिए गोल्ड स्मिथ के दामाद की नहीं, भुट्टो के नवासे की जरूरत है। मैं एक दफा फिर आप सबका, बिलखुसूस अपने महबूब कायद का, दिगर मेहमानान का और मेरी बहनें जो इस छिटटी सर्दी में अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए आई है, मैं आपको सलूट करता हूं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे अजीम महबूब कायद नामजद उम्मीदवार बराए GPLA 14 अस्तर 2 डॉक्टर मुजफ्फर अली रेले साहिब। अब वक्त ज़ाय किए बगैर मैं एक ऐसी शख्सियत को आप सबके दरमियान हाइल करना चाहता हूँ। आपकी गिलगित बल्तिस्तान से वालहाना मोहब्बत है। हमेशा ठठरती सर्दी हो या गर्मी हो, वो यहाँ आते हैं। बदल के रख देंगे रुख ज़ीस्त को हम, बदल के रख देंगे रुख ज़ीस्त को हम, लहू के आँच को जरा से तेज होने दो। आप सबकी भरपूर तालियों में तालियां होनी चाहिए। इस्तकबाल कीजिएगा कमर जुबान कायरे साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। दोनों हाथ बुलंद करके गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले गवर्नर रहने वाले, एजाज रखने वाले हमारे मरकजी कायदीन में से कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के लिए नारों का भरपूर आप जवाब दें। नारे भुट्टो, नारे बिलावल, नारे जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे उम्मीदवार इस हलका से जनाब डॉक्टर मुजफ्फर रेले साहब, दूसरे हलका से हमारे उम्मीदवार जनाब अब्दुल हमीद साहब, सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंडाल के अंदर मौजूद मेरे बुजुर्गों, पार्टी अहदेदारों, नौजवानों, PSF PYO के अहदेदारों, जवानों और ख़ास तौर पे मेरी इज़्ज़त वाली और मेरी गैरत वाली बहनों, मेरी बेटियों, आप सबको सलाम हो। आज हम आपके पास चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तशरीफ़ लाए हैं। जब से आपका इलेक्शन शुरू हुआ,
चेयरमैन साहब ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान का टूर शुरू किया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा तारीख रकम करती रही है। आज भी हम तारीख रकम कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई लीडर इतने तवील अरसे के लिए इतने दूर दराज इलाकों में, आपके गांव बस्तियों में, वहां तक जाके लोगों से मिल रहा है, अपनी आंखों से लोगों के मसाइल देख रहा है, अपने कानों से उनकी बातें सुन रहा है, ताकि कल जब यहाँ हमारी हुकूमत बने, कल जब पाकिस्तान में हमारी हुकूमत बने, तो फिर बिलावल साहब को ये किसी को बताने की जरूरत ना हो कि अस्तौर की सड़क कैसी है, फलां वैली कैसी है, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों के अंदर वहाँ लोगों के क्या मसाइल हैं, वहाँ की यूथ किन अजाबों का शिकार है, बल्कि चेयरमैन अपनी आंखों से देख के जा चुके हूँ। और मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटियों, चेयरमैन बिलावल आज सिर्फ वोट नहीं मांगने आए, वोट मांगने तो बाकी जमातें भी आएंगी, आपके पास आके डुगडुगियां बजाएंगी, कोई आपसे झूठे वादे करेगा, कोई आपको बिरादरी के नाम पे वोट मांगेगा, लेकिन चेयरमैन बिलावल आज गिलगित बल्तिस्तान में अपना तीसरा दौरा कर रहे हैं। इसलिए कल इस दौरे के जरिए वो आपसे मिलके वो भुट्टो शहीद, उन्होंने जो रिश्ता गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से कायम किया, वो रिश्ता जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने कायम रखा, और उनको शहीद करने के बाद उन कातलों और जालिमों ने समझा कि अब रिश्ते टूट गए। चेयरमैन आज गिलगित बल्तिस्तान के गांव-गांव जाके ये इजहार कर रहे हैं, ये इकरार कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि जब तक एक भी भुट्टो खानदान का फर्द जिंदा है, ये रिश्ता कायम है और कायम रहेगा। ये शहदा के खून से बंधा रिश्ता है, ये कोई मफादात से बंधा रिश्ता नहीं है, ये इक्तदार का रिश्ता नहीं है, ये खिदमत का रिश्ता है, ये वफादारी का रिश्ता है, ये हकूक का ताल्लुक है। अरे जिसके अंदर जज्बा हो ये काम वही करता है। अभी मेरे साथी कह रहे थे आजकल पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है, यहाँ पे भी पीटीआई वाले आए होंगे ना, आ रहे होंगे आपके पास, और कह रहे हैं कि जी हमने सोचा है कि हम आपको अबूरी सूबा देंगे। अरे भाई, ये सारे जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं ना, नौजवानों, मेरी बहनों, बच्चियों, इन सफेद दाढ़ी वालों से पूछो कि भुट्टो शहीद के आने से पहले आप आजाद तो हो गए थे, आपने डोगरों से आजादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन आपको अमलन आजादी नहीं थी, बल्कि आपके यहाँ डोगरा राज था, एफसीआर थे, जालमाना कवानीन थे, आपको हुकूक हासिल नहीं थे, यहाँ गुर्बत थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी। उन हालात के अंदर पीपल्स पार्टी ने आके शहीद भुट्टो ने वो कदम रखा जहां एक तरफ उन्होंने सब्सिडियां दी, जहां एक तरफ उन्होंने आपको हुकूक दिए, आपको नौकरियां दी, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बुनियाद रखी, एफसीआर का खात्मा किया, पाकिस्तान के बाकी इलाकों के बराबर आपको लाने के लिए उस सफर का आगाज किया जो अब आखिरी मरहले पे पहुंच चुका। उस सफर में उन्होंने एफसीआर खत्म किए, जालिमाना कवानीन खत्म किए, राजगिरी खत्म की, आपको कमिश्नरी का दर्जा दिया, आपको आपकी अपनी अदालतें दी, इंसाफ का निजाम फराहम किया। और कहते हैं कि उस वक्त इतने रोजगार थे कि रोजगार देने वाले मौजूद थे, रोजगार लेने वाले नहीं थे, और वो सफर जारी रहा। भुट्टो शहीद को शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद उनकी बेटी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने वो सफर जारी रखा। और जिस तरह नैयर हुसैन बुखारी साहब ने बताया कि बीबी शहीद ने आपके यहाँ अपनी कौंसल, अपने मुंतखब नुमाइंदे और सियासी अमल का इजरा किया,
पहले इलेक्शन आपके यहाँ सियासी जमातों की बुनियाद पे बीबी शहीद के दौर में आए, उन्होंने इस सफर को जारी रखा, खिदमत के सफर को भी जारी रखा, और वो सियाचिन के उन पहाड़ों की चोटियों तक गई ताकि वो आपके मसाइल देख के इनका हल कर सके। और उसके बाद अगला सफर उनको शहीद किया गया तो आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत बनी। हमारी तो बड़ी कमजोर सी हुकूमत थी, हम तो को 2/3 अक्सरियत वाले नहीं थे, और उस वक्त यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा था, बल्कि हमने वो तारीखी जिम्मेदारी जो भुट्टो शहीद से शुरू हुई, जो बीबी शहीद तक पहुंची, आसिफ जरदारी साहब से होते हुए अब बिलावल साहब के कंधों पे है, और वो है कि आपको आपके हकूक दिलाना, आपको पाकिस्तान के इलाकों के बराबर खड़ा करना। अरे भाई, हो सकता है कोई आपको कहे मैंने आपकी गली बनवाई थी, हो सकता है कोई कहे मैंने आपका खंबा लगवाया था, हो सकता है कोई कहे मैं सड़क बनवाई थी, लेकिन हकूक देने की, शनाख्तें देने की, रोजगार देने की, वसाइल देने की, खिदमत करने का किसी का कोई किरदार नहीं है। कोई जमात ये क्लेम नहीं कर सकेगी, सिर्फ एक पीपल्स पार्टी है। और आज चेयरमैन बिलावल आपके पास आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के एक एक इलाके में जा रहे हैं, एक एक हलके में जा रहे हैं, इसलिए कि जो सफर उनके वालिद आसिफ जरदारी साहब ने तय किया कि आपकी कौंसिल से आपको असेंबली दी, आपका गवर्नर बनाया, आपका चीफ मिनिस्टर बनाया, आपकी सुप्रीम कोर्ट बनाई, आपको सूबाई स्टेटस दे दिया, अब सिर्फ आईनी हक देना बाकी रह गया था। यह सफर, अरे भाई, किसी बिल्डिंग पर चढ़ना हो तो सीढ़ियों से चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों से सफर तय होता है, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 4, कभी जंप लगा के भी छत पे गए हो। इसी तरह यहाँ पे भी पहला सफर भुट्टो साहब ने, दूसरा सफर बीबी शहीद ने, तीसरी पौड़ी या सीढ़ी जरदारी साहब ने, और अब आखिरी सीढ़ी जो है वो इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब के हाथों तय होगी। और बिलावल साहब ने 2018 का जब पाकिस्तान में इंतखाब हो रहा था, उस वक्त उन्होंने तय किया, उन्होंने पाकिस्तान भर के लिए अपने नुक्ता नजर का, अपने फहमो फरासत का, अपना जो लाए अमल है कि हम पाकिस्तान में क्या करेंगे, हम अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, सारे सूबों के लिए, अपनी बेटियों और बहनों के लिए हम इनके लिए क्या इक़दाम करेंगे। वहां उन्होंने 2018 में ये लिखा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को यहाँ क्या खिदमत करेंगे। ये इस इलेक्शन में नहीं, ये इस इलेक्शन में नहीं कि इमरान खान को इलेक्शन आया तो किसी ने बटन दबाया तो बोलना शुरू हो गया कि हाँ हम सूबा देंगे, बल्कि 2018 में बिलावल साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के हकूक के बारे में लिखते हुए कहा, चंद लाइनें मैं पढ़ता हूँ, ये याद रखें, खिदमतें वही करते हैं जिनकी नस्ल में खिदमत करने की आदत होती है, हकूक वही देते हैं जिनका विरसा ये होता है। और बिलावल साहब ने लिखा, ये लंबा है लेकिन मैं चंद लाइनें पढ़ता हूं और ये फिर याद करा दूं, अगर 2018 में हमारी हुकूमत न रोकी जाती, ये पुतली हुकूमत न खड़ी की जाती, तो ये एजेंडा मुकम्मल हो चुका होता, आपको हुकूक मिल चुके होते। और ये क्या लिखा, आप चेयरमैन ने लिखा कि हमारा अज़्म है कि इस्लाहाती एजेंडा जारी रखेंगे और मंदरजा ज़ैल इक़दामात करेंगे। वो क्या हैं? नंबर 1, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने के इक़दामात करेंगे। ये होता है स्टेटस देना, ये होते हैं हकूक देना। यार ये 2018 का है, ये इलेक्शन में आपको धोखा देने के लिए नहीं, ये वोटों के लालच में नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए लिखा। और फिर लिखा कि 18वीं तरमीम को मद्देनजर रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के सूबे का दर्जा देने या अबूरे सूबे के लिए आईनी इक़दामात करेंगे। ये बात आज नहीं कह रहे, ये 2018 में चेयरमैन ने कहा। फिर लिखा कि पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जनरल इलेक्शन बेयक वक्त हो ताकि आपके वोट छीने ना जा सके, आपके वोट चोरी ना हो सके, आप जिसको वोट दें वही आपका नुमाइंदा बने। और फिर लिखा कि आपके खित्ते के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान के दीगर इलाकों के साथ सड़कों का राब्ता और वसी करेंगे।
आपको ताकि आपके नौजवान, ताकि आपके मजदूर, ताकि आपके किसान ये आमद और रफ्त के जरिए अपना रोजगार कमा सके, अपने हालात बेहतर कर सके। और फिर लिखा, नौजवानों ये आपके लिए अहम है, आपकी हुकूमत काम तब करेगी जब उसके पास पैसे होंगे, वो आपको रोजगार तब देगी जब पैसे होंगे, और ये काम सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है, रोजगार हम देते हैं। वो कहते थे ना बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, अब बिलावल भुट्टो आएगा रोजगार लाएगा, बिलावल भुट्टो आएगा। तो चेयरमैन साहब ने लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान को वफाक की जानिब से रेवेन्यू में मुख्तास हिस्से में इजाफा किया जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान को ज्यादा वसाइल दिए जाएंगे ताकि आपके काम बेहतर हो सके। ये हम आज नहीं कह रहे, ये वोटों के लालच में नहीं कह रहे, ये तारीखी जिम्मेदारी के तौर पर 2018 में लिखा। और फिर लिखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की माली खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएंगे ताकि आपके फैसले आपके नुमाइंदे करें, आपके फैसले रेले साहब करें, हमीद साहब करें, आपके बाकी नुमाइंदे करें, ताकि अपने सूबे के वसाइल को बेहतर तरीके से मुस्तफीद हो सकें। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बातें तो बहुत, लेकिन मौसम ठंडा हो रहा है, फिर इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। लेकिन एक याद रखना, ये पुतली तमाशा दिखाने वाले, ये डुगडुगियां बजाने वाले, ये खूबसूरत नारे लगाने वाले, ये मौसमी परिंदे होते हैं, ये खास मौसमों में आते हैं, दाना दुनका चुग के भाग जाते हैं। अरे जिनके रिश्ते सदियों से हों, जिनके शहीदों के खून से बंधे रिश्ते हों, वही कायम रहते हैं, वही आपकी खिदमत करते हैं। और वो सफर अब इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब अदा करेंगे। और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर पे अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का। मुझे पता है आपके इलाके की रवायत इस तरह नहीं है। आपको सलाम है कि आप सब अपने बेटे, अपने लीडर बिलावल साहब के इस्तकबाल के लिए आए हैं, आप सब आए हैं। और मैं नौजवानों को ये जरूर कहूंगा, बुजुर्गों का कहूंगा कि आज से बैठना नहीं है, सब ने मुजफ्फर रेले बनना है, सब ने बिलावल भुट्टो बनना है, हर घर जाना है, एक एक वोट मांगना है, और गिलगित बल्तिस्तान के सारी की सारी सीटें बिलावल साहब को देनी है ताकि वो आपकी खिदमत कर सकें। अब मैं आपके चेयरमैन, आपको बड़ा तवील सफर इंतजार करना पड़ा, अब मैं आपके चेयरमैन को दावत देने लगा हूं। खड़े होके, हाथ हिला के, ताली बजा के इस्तकबाल करना। नारा नारा भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 बिलावल। बेटा आप भी नारा 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 बिलावल। आपके चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अस्तौर के भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। ये अब मेरा तीसरा दौरा है गिलगित बल्तिस्तान का, और ये मेरा खुशकिस्मती है कि इसी अस्तौर की सरजमीन पे, इसी ग्राउंड पे ये मेरा दूसरा जलसा है। मैं यहाँ के अवाम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हम यहाँ पेश आए हैं तो आपने हमारा
तारीखी इस्तकबाल किया है, और जिस तरीके से, जिस जोश और जज्बे के साथ आप हमेशा हमारा इस्तकबाल करते हैं, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने जो 3 नस्लों का अस्तोर के अवाम के साथ रिश्ता है, उसको आगे लेने के लिए, उस ताल्लुक को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर मैं आपके दरमियान में मौजूद हूं। जैसे कायरा साहब ने, बाकियों ने कहा, जो भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक में इजाफा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। पहले भुट्टो शहीद के दौर में 1970s में आपने FCR का निजाम का खात्मा किया, राजगिरी निजाम का खात्मा किया। भुट्टो शहीद ने इसी अस्तोर आके आपकी सरजमीन पे खड़े होके गंदम का सब्सिडी का ऐलान किया। बीबी शहीद ने 1970 से लेके 94 तक ना अस्तोर के अवाम में, ना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक में कोई इजाफा हुआ, ना कोई तरक्याती मंसूबे दी गई। मगर फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1994 में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए LFO पास करके यहाँ की सियासी आज़ादी और जमहूरी आज़ादी दिलवाएं। आपको चीफ एग्जीक्यूटिव दी, ना सिर्फ यहाँ के नौजवानों को पाकिस्तान भर के जो इदारे हैं उसमें नौकरी दिलवाई, मगर जो हमारे औरतें हैं, खवातीन हैं, उनको भी रोजगार दिलवाए। चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूरत में हो, या लेडी पुलिस ऑफिसर्स की सूरत में हो, या सबसे पहले वुमेन्स बैंक की सूरत में हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत की, रोजगार दिलवाए, मुआशी तरक्की दिलवाए। और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक तवील अरसे इसके लिए इंतजार करना पड़ा, फिर से उनके हकूक में इजाफा नहीं हुआ। आमिर मुशर्रफ का दौर गुजरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आया, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान को जाके 2009 में अपनी शनाख्त मिली। गिलगित बल्तिस्तान का नाम गिलगित बल्तिस्तान रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपना वजीर आला मुंतखब किए, अपने असेंबली मुंतखब किए, और जो काम सदर जरदारी के दौर में हुआ था, आज तक उसका फायदा हो रहा है। चाहे वो हमारा तारीखी और इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मंसूबा हो, जो आज तक गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके सिंध के समंदर तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों का मदद कर रही है, तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया पे जो हमने बीबी शहीद कार्ड बनाया था, वो आज तक हमारे मुल्क के गरीब औरतों का खिदमत कर रही है। साथियों, आजकल पाकिस्तान तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रही है, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रही है, तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। और आप सब जानते हो कि पाकिस्तान भर में एक ही जमात है जो महंगाई का मुकाबला कर सकती है, जो गुर्बत का मुकाबला कर सकती है, जो बेरोजगारी का मुकाबला कर सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। रोजगार हो तो पीपल्स पार्टी ने दिलवाए। पिछले दौर में, सदर जरदारी के दौर में, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 25,000 जॉब्स दिलवाए गए थे। सदर जरदारी के दौर में हमने महंगाई का मुकाबला किया, ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, मगर तनख्वाह में इजाफा करके हमारा मुलाजिमीन की तनख्वाह 150% का इजाफा हुआ। हमारा जो फौज की तनख्वाह है, हमारा सिपाहियों की तनख्वाह है, जो आपका सरहदों का दिफा करते हैं,
اس کا 175% اضافہ ہوا. ہمارا بزرگوں کے پینشنز میں 100% اضافہ ہوا. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے لے کے آج تک اذان کے لیے ہم ذرا رکتے ہیں. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا، ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، ہمارا فوج کی تنخواہ تک میں اضافہ ہوا. لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے سالوں میں 7 سال ہو گئے ہیں، نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، نہ ہمارا پینشن میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم سب تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں. عمران کی حکومت کے آنے کے بعد تنخواہ کا اضافہ پہ تو دور کی بات ہے، جن لوگوں کے پاس روزگار موجود ہے ان سے بھی روزگار چھینا جا رہا ہے. ہمارا غریب ترین عورتوں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتی کیا جا رہا ہے. اس قسم کا ناانصافی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، ہم نے یہاں کا گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، گلگت بلتستان کے بزرگوں کو اس ناانصافی سے بچانا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو معاشی بحران کے باوجود، کورونا کے باوجود نہ صرف تنخواہ میں اضافے کیے ہیں مگر ساتھ ساتھ پینشنز میں اضافے کیے ہیں. اس لیے ہم اپنا بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے لوگ جو محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. ان کو عمران کی طرح، باقی جماعتوں کی طرح ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، آپ کی سرزمین سے شہید بھٹو نے گندم کی سبسڈی اناؤنس کی تھی. عمران کی پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو سبسڈی چھینتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سبسڈی دلواتی ہے. کل ہی عمران نے اعلان کیا کہ سستا بجلی کے لیے وہ کچھ کریں گے. پتہ چلا کہ یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ امیروں کے انڈسٹریز کے لیے بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. چاہے وہ بجلی کی بل کی صورت میں ہو یا گیس کی بل کی صورت میں ہو، عوام اس حکومت کا نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہمیں ایک عوام دوست حکومت چاہیے جو عوام کی خیال کرتی ہے، جو عوام کی خدمت کرتی ہے، اور وہ صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں، استور کے بہادر نوجوانوں نے 18 اکتوبر پہ شہادت قبول کیا تھا.
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमें इनका बहादुरी को सलाम भी पेश करते हैं और साथ साथ वादा करते हैं कि उनकी याद में हमने अस्तोर के अवाम का ख्याल रखना है और इंशाअल्लाह ताला जब आप तीर को मुंतखब करवाएंगे, जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाएंगे तो हम कारसास के शोदा के सरजमीन को, कारसास के गाजियों के सरजमीन को, इसी अस्तोर के अवाम के ना सिर्फ खिदमत करेंगे, ना सिर्फ रोजगार दिलवाएंगे, ना सिर्फ उनके सरके बनवाएंगे, मगर वो जो नामुकम्मल काम आपका रहता है, जैसा सदर जरदारी का शोटर टनल का बुनियाद रखा गया था और सड़क का बुनियाद रखा गया था, जो कि आपका जो डिस्टेंस है कश्मीर से हो या इस्लामाबाद से हो, उसको कम करना था। अफसोस के साथ उस मंसूबा पे ना पिछली हुकूमत ने काम की, ना मौजूदा हुकूमत ने काम किया, लेकिन अब आपकी हुकूमत आ रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली है और इंशाअल्लाह ताला जब ये शॉर्टर टनल बन जाएगी, इसके रोड बन जाएगा, तो फिर आपका जो डिस्टेंस है इस्लामाबाद से हो या कश्मीर से हो वो कम हो जाएगा और मेरे अस्तोर के बहादुर अवामों के फायदा में होगा। साथियों, हम आपके मुतालबात पे चलेंगे, जो भी आपका मुतालबात होगा हम उसके मुताबिक काम करेंगे। आपने 2 सब डिविजन्स के मुतालबात किए हैं तो हम आपको 2 सब डिविजन्स दिलवाएंगे, मगर इमरान की तरह यहाँ आने के बगैर, आपके पूछे बगैर फैसले नहीं लेंगे। सुना है कि आपका जो रामा वैली है उसको इमरान ने आज खुद आपके पूछे बगैर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। हम इमरान को ये नहीं करने देंगे, ये अस्तोर के अवाम के सरजमीन है। आप में कैसे हिम्मत हुआ कि आप अस्तोर के अवाम की जमीन पे कब्जा कर सके? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का वादा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तहरीक चल रही है कि हम ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक में दिलवाएंगे, मगर हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत भी दिलवाएंगे। जैसे भुट्टो शहीद ने गरीब किसानों को अपनी जमीन का मालिक बनाया, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवा के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गिलगित बल्तिस्तान की जमीन का मालिक बनाएंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहरीक है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के तहरीक है। आपने इसी तहरीक के सिलसिले में मुझे पहले भी यहाँ लेकर आए थे, तब भी हमने हकमियत का नारा उठाया था, तब भी हमने हक मलकियत का नारा उठाया था और अब हम हक रोजगार का भी नारा उठा रहे हैं। ये हमसे 3 वादे आपके लिए हैं कि हम आपको हकमियत दिलवाएंगे, हम आपको हक मलकियत दिलवाएंगे और हम आपको, आपके नौजवानों को हक रोजगार भी दिलवाएंगे। लेकिन हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का दौरा खुद कर रहा हूँ, यहाँ के आवाम से अपील कर रहा हूँ कि मेरे साथियों, आपने भुट्टो शहीद के साथ दिया, आपने बीबी शहीद के साथ दिया, अब आपने मेरे साथ देना है। हमने मिलके यहाँ के आवाम का मसाइल हल करना है, चाहे आप अस्तोर से ताल्लुक रखे या खपलू से ताल्लुक रखे, तीर के साथ तो, शहोदा के जमात के साथ तो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जमात के साथ तो, और इंशाअल्लाह ताला कदम बढ़ाओ बिलावल।
की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी दिलाएंगे, यहाँ के खवातीन के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। सिंध की तरह मैं मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़ा कर दूंगा, जैसे हमने कराची से लेके लारकानों तक दिल के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं। इंशाल्लाह ताला आपका उस्तौर में भी इस किस्म के हॉस्पिटल्स होंगे। ये काम हमने करके दिखाया है। जहां हमने सिंध के मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड का बंदोबस्त किया है, आप इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना रहे हो। 15 नवंबर के बाद इंशाल्लाह ताला पूरा गिलगित बल्तिस्तान के मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड दिलवाएंगे, उनको भी उनका हक दिलवाएंगे। साथियों, हम एक अहम मोड़ पे खड़े हुए हैं। ये इलेक्शन सिर्फ इक्तदार की बात नहीं है, सिर्फ हुकूमत बनाने की बात नहीं है। ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल की सवाल है, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। और मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से आपने बाकियों को भी मौका दिया है, अब आप मुझे मौका देंगे ताकि मैं भुट्टो शहीद का नाम कमल मिशन और बीबी शहीद का नाम कमल मिशन को आपके साथ मिलके इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल कर देंगे। आपने ये पूरी दुनिया को बता दिया है, आपने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बात है तो उनके लिए एक ही जमात है, उनके लिए एक ही निशान है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तीर है। और जगह जगह ना सिर्फ हमारे भाइयों ने हमारा इस्तकबाल किया है, लेकिन जिस तादाद में हमारा बहनों ने, गिलगित बल्तिस्तान के बहनों ने हमारा इस्तकबाल किया है, उन्होंने उन जालिमों को तो जवाब दे दिया है, उन जालिमों को जवाब दे दिया है जिन्होंने हमसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो छीनी है। उन जालिमों को जवाब दे दिया है कि आपने बीबी शहीद तो हम में से छीन लिया है, मगर अब गिलगित बल्तिस्तान की हर औरत, अस्तौर की हर औरत बेनजीर भुट्टो बनने को तैयार है, बिलावल भुट्टो के साथ देने को तैयार है। इंशाल्लाह ताला मारोगे हर घर से भट्टू निकलेगा, तुम कितने भट्टू मारोगे हर घर से भट्टू निकलेगा। जिंदा है भट्टू, जिंदा है, जिंदा है भट्टू, जिंदा है, किसान का भट्टू जिंदा है, गिलगित का भट्टू जिंदा है, अस्तौर का भट्टू जिंदा है, जिंदा है। 15 नवंबर को आप डॉक्टर रेले साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएंगे इंशाल्लाह ताला अस्तौर तीर पे धब्बा दिलवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएगी। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाते हो तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके जल्द बाद हमारा इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ हुकूमत है वो भी घर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा और जीत सिर्फ और सिर्फ अस्तौर की आवाम की होगी, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की होगी, आपकी होगी। जिए भुट्टो।